Hello, Avilash. Hey Xerxes, how are you? Very good. It's been a while. Yes, yes, indeed. कब मिले थे हम लोग? डेढ़ दो साल पहले मेरे ख्याल से। आराम से लोअर ज्यादा परेल, लोअर ज्यादा परेल। ज्यादा Yeah, totally. In fact, like I'm just trying to remember last we spoke was also a while back. नहीं, लास्ट तो वी स्पोक 10 minutes बैक ना, जब तेरा इंस्टा अटक गया था। I mean, for something else other than this. How have you been, SK sir? SK sir has just finished his radio show and SK sir is Ajay. free now. हाँ यार, Mm-hmm. that's why मैं तेरे को बोला था 5 5:30 तो won't be possible because I do my radio show. So I recorded the entire thing, by 7:15 and now I'm all yours, Baba. Yeah, Baba. let's go, let's go. Okay, for those of you who do not know Abhilash, he is started off as an RJ, is an actor. He's acted in a bunch of movies, got stereotyped as the funny guy for the longest time. बाद में on Instagram you went and did Muffler Man and a bunch of other parodies, reverse objectification shoot, which you might have seen. We'll talk about that later. And off late, he was seen in TVF Aspirants, where he has like just taken everyone's hearts by storm. In fact, he wasn't the main character, but he became the main heartthrob of the character. तो पहले let's talk about SK sir. Abhilash, कैसे हुआ ये? I mean, in the middle of a lockdown when everything Yeah. was poof. SK sir came out of nowhere. You had not teased it. When did you shoot the show? So we shot it. We started at the end of last year, और हम लोग starting तक shoot करे थे till I think February or March तक हम लोग we were shooting, and Uh-huh. there were a lot of hurdles because Naveen and Shivankit, they got COVID positive, and the Okay. shoot was stalled. And after that, my personal struggles, because of that Mm-hmm. also we had to take a break. पर हाँ यार, तू सही बोल रहा है, कोविड के टाइम पर Uh, देख, मेरे लिए एक ऑलरेडी किसी ने बोल दिया हिंदी में बात कर लो, क्योंकि देख आज का जो लाइव होने वाला है ना जर्सीज, मेरी पूरी इंग्लिश खत्म होने वाली है, समझ रहा है तू? works. Works. मैं ए टू इनफैक्ट जी मेरी लिटरली, हिंदी बाहर अभिलाष आने टू वाली है. हाँ, जर्सीज, अभिलाष टू बस सक्सेस. जर्सीज ए टू जी है ये। मेरी तो हिंदी निकलने वाली कोशिश चालू yeah, and रहेगी. also Saqib वाह. Salim has joined us. Hi Saqib, how are you? Uh, हेलो. तो यार वहां से मतलब we had no idea how we'll shoot, कैसे करेंगे, how we'll figure this entire bit out, क्योंकि दिल्ली में शूट कर रहे थे हम लोग, Mm-hmm. मुंबई नहीं था. We know Mumbai to be more professional when it comes to shoots and everything, but to my surprise यार, दिल्ली was equally good, Okay. बिकॉज ऑफ द टीवीएफ टीम. तो वहां से कॉल आया, बोला कि यार हम लोग ये एक एस्पिरेंट्स नाम की सीरीज कर रहे हैं अरुणाभ का. Mm-hmm. उन्होंने कहा सॉरी या तो हाँ. तेरे लिए एक हाँ. कैरेक्टर है एसके सर का, तू करेगा? मैंने कहा मतलब ये कैसे सवाल है यार पूछने वाले हैं, 100% करेंगे यार. तो मैं गया ऑडिशन के लिए, एंड देन आई मेट अपूर सिंह कार्की, हु इज द डायरेक्टर. ऑडिशन Mm-hmm. दिया, और as you know तेरा भाई मतलब कितना किलर एक्टर है, तो मतलब नहीं यार, बट आई थिंक वो राइटिंग इतनी अच्छी है, वो डायरेक्शन इतना अच्छा है, दैट and it's primarily because of that SK is getting a lot of love. I think any actor, Mm. anyone else apart from me also, had anyone else played that role, वो उतना ही impactful होता, वो उतना ही उसको प्यार मिलता है. I'm sure, but I mean, you did bring a lot of heart. I mean, तेरा दिल नजर आ रहा था उसमें. You were putting in all. I think from the first 5 minutes जब तू speech दे रहा है in class for all the aspirants, from the point of that to the point where Guri insults you and says like you are a Yeah. failure. You can feel all of that, and वो तेरे चेहरे पे नजर आ रहा है. Was it too close to you, the character? Were you not just acting? Were you also relating to it on a personal level? uh, देख, कभी भी whenever you are playing a character, obviously it's an extension of you. You bring in a lot of emotions and relatability and what you have gone through in life. That's all, Hmm. that'll always be there. मतलब तेरे से जब कोई बात करे तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो तो तेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही आएगा. बट Right. ही इज डिफरेंट यार. एसके इज डिफरेंट, मतलब सीधा साधा लड़का है यार, ब्लैक एंड व्हाइट समझने वाला, हम्बल बैकग्राउंड से आता है. और हम सब, मतलब मैं भी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं. मेरे हाँ. बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं एसके जैसे. दिल्ली का शूट है तो दिल्ली के कैरेक्टर्स को हमसे अच्छा कौन जानेगा यार. तो बहुत सारे एसके जैसे फ्रेंड्स रहे, वहां से वो कनेक्शंस आए और वो लेकर आए यार हम लोग साथ में. बट आई थिंक जब तू बात कर रहा है एसके इज डिफरेंट फ्रॉम मी, एब्सोल्युटली ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी.
बहुत सिंपल है यार, हम लोग जर्सीज बड़े शहर हमको बिगाड़ देते हैं यार, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हमें यहाँ से, उसके यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं। हमारे को ना हर एक चीज वी एनालाइज, वी असेस एवरी डैम थिंग विच इज टोल्ड टू अस, राइट every advice which is given to us, we analyze that, we think यार क्या इसका मोटिव क्या है, क्यों बोल रहा है, अच्छा अच्छा तारीफ भी कर रहा है तो हम डाउट करते हैं उसका, उसको बिल्कुल गाली भी दोगे तो भी वो डाउट नहीं करेगा, वो इंटेंट देखता है। तो बहुत ही साफ दिल का लड़का है यार जर्सीज एस के तेरे जैसा। तो मेरे से अलग है यार, मेरे से अलग है उस तरीके से, और मेरे को लगता है वो कैरेक्टर मुझे बहुत कुछ देकर गया है। मैं किसी से बात कर रहा था, उसने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि हर एक वो होता है ना एम्प्टी ग्लास, हाफ एम्प्टी और हाफ फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाला हाफ टाइप। फुल वाला तो ग्लास हम एग्जैक्टली लोग कभी अप्रिशिएट नहीं करते यार जर्सीज हमारे पास लाइफ में क्या है, हम लोग हमेशा वी ऑलवेज रनिंग आफ्टर समथिंग व्हिच वी डोंट हैव, बिल्कुल रेडियो आ गया तो फिर एक्टिंग करनी है, एक्टिंग आ गई तो फिर हॉलीवुड करना है, हॉलीवुड आ गया तो हॉलीवुड फिर और कुछ ऑस्कर चाहिए अब। ऑस्कर तो चाहिए। हाँ, तो समझ रहे, तो एस्पिरेशन हमेशा बढ़ती रहती है यार। इस कैरेक्टर की एस्पिरेशंस भी नहीं है, बड़ा प्यारा है यार। तो ये हाफ इसको फुल देखने जस्ट वाला बंदा है। बिल्कुल एंड ये हाफ फुल वाला बंद आई मीन लाइक यू सेड हम लोग फिलहाल वी हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज हमें डिसाइड कर रहा है कि भाई कोविड के टाइम पे हम कंटेंट कैसे बनाएं, क्या कंटेंट ठीक है क्या कंटेंट नहीं है, उसकी दुनिया अलग है। बट लेट्स टॉक टू अभिलाष राइट नाउ। अभिलाष, जब लास्ट ईयर कोविड चालू हुआ अराउंड दैट टाइम मफलर मैन पिक्ड अप बिकॉज आप घर पे बैठे थे, राइट, आई एम सही बोल रहा गेसिंग। है, सही बोल तो रहा है। क्या चल रहा था आपके दिमाग में व्हेन द फर्स्ट कोविड लॉकडाउन हैपेंड? देखिए यार, उस टाइम तो सब कुछ बहुत नया था हम सबके लिए। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे और हम लोग वही बात कर रहे थे। आज मैं एक नानावटी की जो नर्सिंग स्टाफ की हेड है उनसे बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि जब कोविड नया नया आया था तो हमें भी नहीं पता था कोविड क्या है, तो हम लोग वुहान के वीडियोस देखते थे कि वो लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली जब लॉकडाउन हुआ था हमें भी नहीं पता था हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हम लोग बिल्कुल मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि लोगों का स्ट्रगल क्या रहा है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं पता था भाई क्या हो रहा है। हम लोग भी बस एक्सपीरियंस कर रहे थे उस चीज को, वन डे एट अ टाइम। इवेंचुअली यार मुझे लगा कि उस टाइम पर सटायर तो एक चीज थी, क्योंकि एकदम से थाली और तालियां बजनी शुरू हो गई थी, मुझे याद होगा है ना। तो मुझे एंड लगा घंटिया घंटियां बजनी शुरू हो गई थी, सीटें, डीजे बज रहे, बैंड्रा में रहता हूँ मैं, कार्टर रोड पर डीजे बज रहे थे यहाँ पर ब्रो। मैंने कहा यार लॉकडाउन नहीं था, ये क्या हो रहा है, डांस कर रहे हैं लोग, मेरे को लगा कोरोना सच में मर चुका है कसम से। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि अभी कुछ तो करना चाहिए। दैट्स व्हेन मेरा मरा हुआ कैरेक्टर मफलर मैन, आई गॉट मफलर मैन बैक। ठेके बंद हो रखे थे, मेरे शराबी दोस्त बड़े परेशान। दिल्ली वालों का ना, तेरे को पता है जर्सी से एक अलग ही टशन होता है उनका, उनको शराब चाहिए। उनको लाइफ में बिल्कुल कुछ भी ना मिले, 30-60 मिल जाए ना, मेरे दोस्तों को खासकर उनका सेट होता है। बोलते यार यहाँ ठेके बंद हो गए यार, अभिलाष यार तू तो पीता नहीं है यार, लेकिन तेरे को पता नहीं है हमारी लाइफ में बड़ी भसड़ हो रखी है। तो मैंने कहा रुको मैं कुछ करता हूँ। देन आई क्रिएटेड जेडी साहब। तो जेडी साहब वाज वो एंग्स था बेसिकली सारे लड़कों का जो शराब के ठेके खुलवाना चाह रहे थे। जेडी साहब वो डायरेक्टली टॉक टू अपना क्या बोलते हैं मोदी जी, यार आप ठेके खुलवाओ यार, आपने कहा था ना कि अल्कोहल से मरता है कोरोना, तो अल्कोहल क्यों नहीं मिल रहा मारने को। his logic was as basic as this. And then I thought, why not talk about whatever is happening through a different perspective। और हिमांशु एंड गैंग, मुझे लगता है पता नहीं तुमने देखा ही नहीं देखा, डॉग्स would talk to each other, तो वो भी एक पॉलिटिकल कमेंट्री थी जो शुरू की मैंने। हाँ तो इंटरेस्टिंग था। और देख मेरा ह्यूमर वैसा ही रहा है हमेशा से, इट्स वेरी वेरी मासी एंड वेरी पॉलिटिकल। तो राइट उसके साथ हमेशा तेरे को पता है कि थोड़ा रिस्क तो रहता ही है कि एवरीवन विल बिल्कुल रिएक्ट इन देयर ओन वे, बट यार यू कांट स्टॉप, मतलब तू कमेंट्स तो नहीं स्टॉप कर सकता है ना, तू बिल्कुल। रिएक्शंस तो नहीं स्टॉप कर सकता है। But I have noticed आपके comments पे when you get you don't get hate as much as other comedians who are talking to Modi ji, okay, even if they are calling him out, उनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होता है, but you get a lot of love because your humor is actually a little too sweet. It's actually अच्छी तरह से बोल रहा है जो सबके दिमाग में चल रहा है. Like for example, you picked on the alcohol topic. हाँ बिल्कुल राइट, एंड विच इज अ लॉट ऑफ पीपल्स थिंग्स एंड यू कांट रियली ऑब्जेक्ट टू दैट, लाइक हाँ यार वो तो एक चालू करवा लो। तो डूड आई वाज वन ऑफ द, आई वाज लाइक यार एक बियर प्लीज कहीं से कुछ तो। सो या यू पिक्ड ऑन अ थिंग व्हिच इज नॉट इवन डायरेक्टली हिज प्रेरोगेटिव। तो क्या हाउ डू यू गेट ट्रोल्ड? यू गेट ट्रोल्ड
कितना I इंटेंस I होता है? I do at times. Thankfully, हाँ Muffler Man का उतना intense वो भक्ति वाला सीन नहीं है जहाँ पर कि बिल्कुल पागलपना मच जाए comment section में. So I do get nasty comments, but just one or two. वो मतलब हाँ, वो सही बोल most रहा है. of the people are taking it in good humor. Right. And also, I am not a comedian. तो यार जब भी तू अगर कंटेंट भी क्रिएट कर रहा है, मजे में भी क्रिएट कर रहा है, एंड वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर तेरा कोई खराब इंटेंट नहीं है ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है. दे कैन सी थ्रू कि इसका हम्म, इंटेंट खराब नहीं है, मजे में बात कर रहा है मफलर मैन के लिए, मफलर मैन बिल्कुल बन के हाँ. कुछ चीजों के बारे में बात कर रहा है. सो दैट्स हाउ इट हैज बीन विद द कैरेक्टर्स आई क्रिएट. वो लवेबिलिटी और वो क्यूट फैक्टर एक रहता है बाय डिफॉल्ट उनमें, तो उसकी वजह से वो कुछ भी कह जाते हैं तो कुछ बुरा नहीं लगता. इट्स जस्ट लाइक तूने कई बार देखा होगा जो सिग्नल पर बच्चे मांगने आते हैं वो बहुत क्यूट होते हैं यार. ए राइट. दे देना प्लीज दे देना. बैक तू भिखारी है, मैं वो तेरे को बोलेगा बट तू स्माइल करेगा. वो ठक हाँ करते रहेंगे और तेरे को स्क्रैच करके भी चले जाएंगे बट तेरे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इंटेंट खराब नहीं है. यू नो हाँ, इनोसेंस है. तो मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर्स में वो एक चीज रही है, वो इनोसेंस रही. एसके के साथ भी वही है, वो बिल्कुल. इनोसेंस, वो हार्ट है. तो इसलिए लोगों को प्यार हो जाता है यार. वो एक चीज मुझे लगती है ऐसा. And the movies that you did before, the little bit of roles that you had played, characters you had played, वो जो transition रहा है from that stereotype that you got to this very different serious role almost, कैसे हुआ ये? ओ यार किस्मत है मुझे लगता है इस शहर में यार. जर्सीज मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये शहर तो मतलब यार टैलेंट का भंडार है. आई एम जस्ट लकी दैट आई गॉट दिस रोल. मैं हम्म. मतलब मैं वही कहूंगा कि ये भी नहीं कहूंगा मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने कुछ किया. इट इज जस्ट आई एम इट्स प्योर लक दैट आई गॉट दिस रोल एंड आई प्लेड इट विद ऑल माई माइट. क्योंकि यार मेरे पास वही ऑप्शन था, मेरे पास ये एक रोल था और वो करना था यार. मतलब ये वैसा था डिफाइनिंग मोमेंट कि इसमें अब थपलियाल साहब कर लो. either हम्म. you do it, either you pass or you fail. So why not give your 100%? And TVF is such a beautiful storyteller यार. मतलब Right. all their stories, if you talk And in about पंचायत, free, for yeah, free and तू सोचना नहीं, अगर फ्री ना भी हो तो सोच पंचायत, गुल्लक, hmm, परमानेंट रूममेट्स, all of them, yeah, पिक्चर्स, yeah, मतलब ऑल ऑफ देम. तो उसका पार्ट बनना अपने आप में यार इट्स वो big कितने लोग deal. स्ट्रगल कर रहे हैं यार उस चीज के लिए. तो आई एम जस्ट लकी Yeah, कि मुझे मिल गया. और तेरा भाई फिर तोड़ एक्टर है तो मैंने मतलब किल कर दिया. तोड़ के फोड़ कर दिया. नहीं बट अब डायरेक्टर आगे. और राइटर का क्रेडिट है यार पूरा. मैंने तो Yeah, सिर्फ yeah, they killed it. It was a या very heartfelt story. या बहुत ही simple concept था, which wasn't too complicated, which was where the key came in. And I think a lot of your fans are getting offended that हम दोनों आपस में बात करने के लिए live में क्यों आए हैं. So I'm ओ guessing सॉरी. at हाँ some यार point भाई we'll do something different. We'll get one of your fans on श्योर live, यार. but towards the later half. पहले मेरे questions में खत्म कर लेता हूँ. So कूल guys, कूल. hang in there. किसी को तो chance मिल जाएगा. Um, so you did that shoot जहाँ पे reverse objectification. You did those sultry hot shoots with eating mango and राइट beach पे राइट लेट रहा है. वो राइट. कहाँ से आया in the middle of the lockdown again? आई वाज जस्ट, मेरे घर में एक तो चावल बन रहे तो सीटियों की आवाज आती रहेगी. दैट्स उसको प्लीज हाँ. माफ कर देना जितने लोग देख रहे हैं. सो मिडिल क्लास घरों की कहानियां, रात के चावल और दाल. तो यार मी खामखा हम्म. खामखा द फोटो आर्टिस्ट एंड देव की वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस जनरली. नॉर्मली हम लोग तापसी के यहाँ पर थे और हम लोग यही डिस्कशन चल रहा था हमारा. और मैंने कहा यार मतलब बड़ा ही स्टूपिड है कि किस तरीके से हमेशा नॉर्मल हम डिस्कशन नहीं करते हैं जर्सीज ऑफलाइन, कितने सारे डिस्कशन होते हैं, वैसा ही एक रैंडम बिल्कुल. डिस्कशन था. तो एक सवाल हम्म. आया देवकी का कि व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट. मैंने कहा नथिंग, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. बोलती अगर इतना बात कर रहा है तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो उसने बोला कि हम, उसका आइडिया था कि हम लोग ऐसा कुछ करते हैं. तो मैंने कहा बट विद हु. तो बोलती विद यू. मैंने कहा बट मैं मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ. मैं मैं कैसा हॉट नहीं हॉट, हूँ. और मैं हॉट मैं नहीं हॉट हूँ. मैं नहीं. तो बहुत नॉर्मल एवरेज लुकिंग लड़का हूँ यार. मैं कहाँ से हॉट सेक्सी, और ये तो मतलब डेफिनेटली सुना ही नहीं है कभी. किसी ने कहा ही नहीं कि आप हॉट हो, किसी ने कहा नहीं आप सेक्सी हो. आप हमेशा ही सुना आप बड़े क्यूट हो, आप बड़े फनी हो, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो. इसमें इस स्पेस में खेल सकते हैं हम. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चल मैं कर भी लूंगा. शूट कौन करेगा. खामखा ने कहा मैं करूंगा. तो मैंने हाँ. कहा भाई ये तो गलत हो रहा है. सब कुछ तैयार है, मतलब नाउ वील हैव टू डू Like you समथिंग. तो can't dodge this. यू कांट, यू जस्ट कैन नॉट. और उसके बाद देव की मेरे ख्याल से यूएस चली गई थी. हम्म. यूएस से उस लड़की ने भाई मतलब शी सोर्स्ड ऑल द क्लोथ्स एवरीथिंग and she was the one who sort of conceptualized the entire thing. And then obviously Khamakha
आ गया, उसका पार्ट बन गया, एंड देन वी शॉट द एंटायर बिट. बट आई थिंक यार जर्सीज, अगर तू और मैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार. मतलब, और हम लोग, मुझे तेरा नहीं पता है बट मैं तो उस ग्रुप का पार्ट रहा हूँ जहां पर कि इस ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में बात किया, बंदी देख कितनी तोड़ लग रही है भाई, हुई हुई बॉम्ब नहीं लग रही है. बिकॉज वी हैव जनरलाइज्ड दिस. मतलब वो इट्स एक नॉर्मल, नॉर्मलाइज हो चुका इट्स है. हाँ. नॉर्मलाइज्ड कंप्लीटली. मतलब, और उसमें थिंक लाइक And your दैट टुडे. audio is gone. ओके, हेलो 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 हाँ हाँ. हेलो. Yeah, you're back. मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर हम लोग इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कौन करेगा. और अगर अभी तक आप ये कर रहे थे और आपको भी रियलाइज हो रहा है गलत है, तो प्लीज स्टॉप इट. देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि कई चीजें हमें पता नहीं होती हम गलत कर रहे हैं, और अब पता लग गया तो रोक दो ना यार. मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट. टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन यू नीडेड, वी नीडेड टू डू समथिंग एंड वी डिड आवर पार्ट. And you think you made a difference or you want to do more in that कि क्या आने वाला है आगे? जर्सीज, अगर तू बात कर रहा है इसके बारे में और तुझे लगता है कि उसमें हमने कुछ किया था, तो आई थिंक आई मेड अ डिफरेंस. Yeah, I अगर mean, it did. I think we need more people making that same kind of noise because वो और एक मतलब spike के तरह आया था. राइट, और मुझे वो लगता है जर्सीज, वैसा नहीं है कि आप कुछ करोगे और उसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी, वैसा कभी नहीं होगा. वी ओनली नीड टू स्टार्ट दैट डिस्कशन. वो ही कर सकते हैं Persistently यार. और वो बस continue बस करना है. बस बस वो बात करते रहो, क्योंकि बात से ही बात आगे बढ़ती है. प्रॉब्लम तब है जब कॉन्वर्सेशन ही नहीं होते हैं, जो हमारी कंट्री में बहुत चीजों पर नहीं हो रहे हैं. गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल स्पेस नाउ बडी. मफलर पहन ले, मफलर पहन ले. और एसके ने भी मफलर पहना हुआ भाई यहाँ पर, देखा तूने? मैंने कहा मेरी लाइफ में मफलर बन गया भाई अब. मतलब मफलर, Like you're गर्मियों सर्दी meant to be मफलर in पहनना. Delhi. You're meant to be in Delhi. अब कोविड कैसे अफेक्ट किया तेरी जिंदगी, तेरी दुनिया को एंड योर मेंटल स्पेस? हाउ हैज इट अफेक्टेड इट जब ये आया था और अब तक? मेंटल स्पेस को तो बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई हैव माई वाइफ विद मी. मुझे ये रियलाइज हुआ सही लड़की से शादी की है लाइफ में, ये क्लियर हो गया. क्योंकि अगर नहीं होती You're तो इतना टाइम married? तक ये. Oh, that's news for me. या SK is married, guys. या एसके इज मैरिड. एसके इज मैरिड. How एसके राइंग long हिम. back? I got married in 2015. Whoa. Yeah, she is my first girlfriend. We were together in 8th standard. I fell for her Wow. then. Then we started Okay. dating. Yeah, when I was in the second year of college. और उसके बाद फिर Congratulations. Yes. I mean, थोड़ा लेट हो गया मगर थोड़ा चलेगा, लेट हो गया मगर फिर चलेगा भी सर, congratulations. शादी मुबारक सर, शादी मुबारक. शुक्रिया सर, शुक्रिया. तो यार उसके साथ रहा तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब आपका पार्टनर कौन है वो बड़ा, उससे बहुत Important इट चीज. इट मैटर्स अ लॉट. आई मीन इफ यू आर विद द Right. रॉन्ग पर्सन, फिर तो बहुत स्ट्रगल हो रहा है भाई लोगों को. I know. बट उसलिए ये खतरनाक था बिकॉज इस कोविड के टाइम पर आई लॉस्ट माय डैड यार. तो Oh. वो चीज है विच आई विल नेवर फॉरगेट. Yeah. उस तरीके से, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट you know Yeah. that entire COVID played a very important role, I think, in his health going down, because he was not stepping out, you know, because of the entire bit, and his friends couldn't come to meet him. तो बड़ा फाइट था यार उसकी वजह से. तो वो मेरे को हमेशा याद रहेगा ये फेज, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. I've lost a lot of friends, I've lost a lot of relatives. वो तो ऐसी चीज है देख जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है जर्सीज. वो तो हमेशा रहेगा, यू नो. सो उस तरीके से इट हैज इम्पैक्टेड मी. बट उस पर कुछ करा नहीं जा सकता यार, मुझे वो लगता है अभी. तू और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें जिनको करना है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं. वहां पे प्रॉब्लम है. हमारे पास 14 महीने थे टू प्रिपेयर फॉर दिस, यू नो. पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. उसके बाद इतनी सारी चीजें होना, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल रैलीज होना, और बाकी तेरे को पता है क्या क्या चीजें हो रही थी. इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, और स्प्रेड हुआ है. आज की तारीख में तू देख कि अभी मुंबई के पास नहीं है डोजेस. उन्होंने कहा है कि 18 से 45 साल बंद के कर रहे हैं लोगों वो को उसको लोग, नहीं करेंगे, वैक्सीन जून बंद से कर हम रहे लोग देंगे. तो फिर, और तब जब हम बोल चुके हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट से डोज देना शुरू कर देंगे, बेसिस व्हाट, आई डोंट नो. तो वैसा रहा यार. तो मेंटल स्पेस ठीक रहा है क्योंकि पार्टनर ठीक है साथ में. डर रोज लगता है यार जर्सीज, क्योंकि माँ दिल्ली में है यार. तो रोज वो डर लगता है कि वो वहां पर, उनके साथ मेरी बहन है अभी, तो रोज सुबह उठ के कॉल करता हूँ, पूछता हूँ हाउ शी. पहला डोज थैंकफुली उनको मिल गया, बट दिल्ली की कंडीशन भी बहुत खराब है अभी जर्सीज. तो वो यार, वो एक ऐसा स्पेस है ना जहां पर मेरे को लगता है कि हम लोगों के साथ अगर लाइफ में कुछ हो हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन पेरेंट्स के साथ कुछ होता है ना तो वाट लग जाती है भाई, you know. Especially you're not there to handle Yeah, it, to help yeah, them. yeah. And especially when your parents are not with you, you know, if you're staying with them, फिर तो एक सुकून रहता है that you are there 24 hours, you know, if anything happens you can take care of that. But if your parents are away and anything like this happens,
यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. तो वो एक घबराहट वाली चीज होती है, और वो कॉन्टिन्यूअस दैट वो डर हमेशा बना रहता है. It's like a You can't dagger let on go of your that. head constantly hanging. ऑलवेज. एंड इस टाइम पर ना, जिस एज में हम लोग हैं, वैसा है भाई कि 2-3 महीने में whenever you go back home, तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रेज थोड़े ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स थोड़े ज्यादा दिखते हैं, उनकी एज थोड़ी और बढ़ जाती है. सो यू गेट all the more scared about the eventuality, which we all are aware of, but it's scary. It's scary to talk about, to face it. To know Yeah. it is one thing, और बाद में जब हाँ काफी इंटेंस हो गया. काफी इंटेंस भाई साहब, काफी इंटेंस. और Okay, let's talk about something lighter. Instagram Reels. सब लोग नाच रहे हैं और एक ही गाने पे मिलियन वीडियोस बनते हैं और उसके ऊपर मिलियन व्यूज आते हैं. हाँ. What is your point of view on ये जो कंटेंट बन रहा है अभी छोटा? I mean, I'm surprised people are watching 40-minute episodes anymore, क्योंकि Instagram पे तो 15-15 सेकंड की चीज देख के लोग नेक्स्ट जाते हैं. राइट. What's your point of view on that? मुझे तो वही लगता है यार कि एक तो मुझे लगता है कि इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इट्स अ फ्री नेशन, इट्स अ फ्री स्टेट. तो जिसको जो बनाना है उसकी उसकी वो आजादी होनी चाहिए फॉर कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस एंड कंटेंट, एज लॉन्ग एज वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है. अगर मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि ये तो मतलब वो किसने सर में दर्द कर दिया तो उसके साथ प्रॉब्लम है. बट अदरवाइज एवरीवन शुड हैव दैट फ्रीडम कि उसे जो बोलना है वो बोले, उसे जो कंटेंट बनाना है वो बनाए. 20 सेकंड में गाना गाना है गाए, 20 घंटे में गाना गाना है गाए. बट if you start comparing 20 second of videos with a 45-minute long episode, I think it's all about the story you tell. If the story is worth your time. देखना, तेरे को मैं रोज देखता हूँ, तू आता है लाइव करता है और तेरे पास कॉन्टिन्यूसली लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तू कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहा है. सो एज लॉन्ग एज यू डू इट इन 20 seconds or 20 hours, इट डजंट मैटर, पीपल विल वॉच इट. गैंग्स ऑफ वासेपुर देखना यार, मतलब 2 पार्ट्स में इतनी बड़ी फिल्म बनी है, देखते हैं ना लोग बैठकर. सो दैट्स हाउ इट इज. इट्स तेरे यहाँ पर भी कुछ हो रहा है. मेरा घंटा बज रहा है. रुक जा, खत्म हो. My Hindi is special. हाँ, okay, हो गया. How you were saying? तेरे को कि it's all about the quality of content. If the quality is good, people will watch it. Whether it's a 20-second or a 20-hour long content piece. And do you think that अभी फिलहाल there should be some kind of a line in between what kind of content should be put out? Because यहाँ पे इतने सारे लोग request डाल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है. And then on the other side, there are some people showing their privilege in terms of vacation photos and I don't know, like unboxings and all of that. तो वो Xerxes बहुत पर्सनल कॉल है यार, और वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है. मतलब तू किसी को एम्पैथी तो नहीं सिखा सकता है, कंपैशन नहीं सिखा सकता है. These are basic things but very important things. हम लोगों के पास, आई एम श्योर तेरे पास भी बहुत रिक्वेस्ट आती होंगी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए, सिलेंडर्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए. मैं अपने रेडियो शो पर जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, ट्विटर पर कर रहा हूँ, बट वो कंपैशन और एम्पैथी या तो तेरे अंदर होगी या नहीं होगी, उसको फेक करने का कोई मतलब नहीं है. सो पीपल हु आर पोस्टिंग vacation videos and pictures and having fun, वो थोड़ा उनको दिमाग लगाना पड़ेगा यार. मतलब इट्स हर एक चीज यू कांट पुट ऑन सोशल मीडिया. एंड ऑल्सो वही है यार, आपको सोचना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट नाउ, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल राइट नाउ, एंड देन तू सही बोल रहा है यार कि मतलब इफ यू आर प्रिविलेज्ड डजंट मीन यू शो इट ऑफ. आप करो, आपको जो करना है लाइफ में करो, बट जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल राइट नाउ. Okay, random question from the live saying, सर एक बात बताओ, एक कान में ईयरपॉड लगाने का क्या फंडा है? यार सर मैं लॉजिक देता हूँ. बेसिकली क्या है, मैं हूँ एक रेडियो जॉकी. तो रेडियो जॉकीज जो होते हैं ना, हम लोग 4-4 घंटे तक शोज करते हैं जहां पर हम लोग लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, गाने प्ले करते हैं. तो हमारे पास ऐसा हेडफोन होता है, ठीक है. लेकिन हमारे साथ हमारी टीम भी होती है जो कॉन्टिन्यूसली हमसे बात कर रही होती है कि सर कॉल आ गया, सर ये करो. तो हम लोग क्या करते हैं, एक हेडफोन लगाते हैं और एक हटा देते हैं, ताकि स्टूडियो में अगर मेरा प्रोड्यूसर या मेरा इंटर्न या मेरा साउंड वाला मुझे कुछ बोल रहा हो तो मुझे सुनाई दे. सो आई एम जस्ट यूज्ड टू इट. आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल कि मैं सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन दोनों कानों से सुनूं. आई वांट टू नो कि एम्बियंस में क्या हो रहा है. सो आई लाइक इट दिस वे, इधर हियर और हियर मेरा एक ही ये लगा के रखता हूँ. कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं Xerxes.
How's your career as an RJ been through the lockdown? Were you worried about work? Was it going on? कि क्या हो रहा था? And how यार has it changed during aspirants, after aspirants? radio is the same यार. I love being on air. I love talking to people. I love playing songs, and I love spreading smiles. वो एक चीज है. तो वो हमेशा से रहा है. That's what I've been doing for last 13-14 years. Lockdown के time पर the organization I work with, 92.7 Big FM, the our CEO यार, our business head, our CEOs, everyone, Abraham Thomas especially, if you know Abraham Thomas, amazing guy. Uh, कमाल का बंदे हैं यार वो. उन्होंने बड़ा सपोर्ट दिया यार पूरी टीम को. नो वन वाज फायर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड नो सैलरी कट्स, नथिंग एट ऑल. वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम Gotcha. होम. या सो पर बहुत सारे रेडियो स्टेशंस में बहुत स्ट्रगल रहा है. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन फायर्ड. टीम्स आर लीनर नाउ. सो every radio station has faced their share of struggles, but thankfully with Big FM it has been great, amazing, because of the senior management. I think primarily because of that, because it just trickles down यार. वहाँ टॉप पे क्या हो रहा है वही हमको बिल्कुल. इम्पैक्ट करता है. तो जॉक्स आर सेफ. हमारे 4 घंटे का शो अभी भी चल रहा है. वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर होम. हमारे घरों में सेटअप है. सो इट्स द सेम, नथिंग हैज चेंज्ड. जस्ट दैट वी आर नॉट टेकिंग कॉल्स नाउ. वो जो एक होता था स्टूडियो की वाइब अलग Live होती थी, वाला वो जो पता है. होता था. यू Yeah. नो कि स्टूडियो की क्या वाइब होती है यार. तो वो बस मिसिंग है. बाकी काम तो हो रहा है. इट्स द सेम. You said yesterday you were supposed to interview Salman Khan. Um, कैंसिल हो गया. नहीं हुआ. तेरे को पता है यार, मतलब कैंसिल हो गया. भाई वाज, मेरे पास जो मैसेज आया था वो ये आया था कि भाई जो है वो थोड़े ही इज टायर्ड, तो ही वोंट बी एबल टू टॉक. लाइक ठीक है, एसके, ये एसके उन एसके को थोड़ी बोल सकता है कि आप काम करो. Got cancelled. Oh God. What are you watching these days besides your shows? आजकल क्या देख रहा है on TV, on OTT, on movies? Just Instagram stories. Nothing else. And seriously बोल रहा हूँ तेरे को, I'm getting so much love Xerxes. मैंने अपनी जिंदगी में इतना प्यार यार नहीं देखा है. इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं. People are writing letters, they are creating sketches, and I am so bloody humbled यार. मतलब हाथ जुड़ जाते हैं यार. कई बार फोन गिर जाता है हाथ जुड़ने की वजह से. There's a lot of people, इतने प्यारे मैसेजेस भेजते हैं. और everyone is saying one thing, that we see ourselves in SK. मतलब अगर एक कैरेक्टर इतना रिलेटेबल हो जाए जहां पर कि लोग ये कह रहे हैं कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ उस कैरेक्टर में, उससे ज्यादा यार बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी भी एक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता है. आई थिंक फॉर मी इट्स, आई एम हम्बल्ड बाय इट यार. मतलब बहुत कमाल के बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं. एक बार मैं तेरे को अपना है ना अकाउंट दे दूंगा, तू देखना. तू भी और कुछ नहीं देखेगा, तो सिर्फ स्टोरीज देखेगा. तो सिर्फ अब रिप्लाई कर रहा होगा, बात कर रहा होगा. तो बड़ी सही फील है यार. Season 2 आने वाला? I mean, that's what people have been asking. People are asking it to be around SK also. हाँ, exactly. नहीं देख, लॉजिकल अगर एक्सटेंशन होता है तो व्हाई नॉट यार. इतनी प्यारी स्टोरी है, इतना प्यार मिल रहा है उसको. वर्ल्ड के टॉप 30 मोस्ट हाईएस्ट रेटेड IMDb पे पहुंच गया है. हाँ. तो मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक. जहां पर कि हम लोग इतना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें से कोई एक दो कहानियां वहां तक पहुंच रही हैं, तो मतलब क्वालिटी कंटेंट तो है. तो हाँ, अगर रैशनल एक्सटेंशन है, देन व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट. It's right next to The Office on IMDb, which is a big deal. या. तूने इंडियन ऑफिस देखा है? नहीं? ओके, कूल, सही है. It didn't have. No, tell me, what were you going to say? I haven't had the courage to. नहीं, बस सही है. उसको वही रखो, अपने आप को वही रखो. आप जो सोच रहे हो वैसा ही सोचो. नेक्स्ट. Okay, we got a bunch of requests to be in the video. Now I'm just gonna say some names. किसको आना है video? There's some dude called I am Priyanshu 18. Let's try if he's on right now. I am Priyanshu 18 को request जा चुकी है. Does he want to come on? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है. Magic is not working out. Insta magic is not happening. Full popart is happening. यार जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को लाइव आना है, if you want to talk about SK, if you want to talk to Xerxes, please request भेज दो यार. Let's हाँ जी, करते हैं, बिल्कुल. आपसे बात करते हैं. Are you going to take SK out of Instagram? I mean, out of aspirants and do some in-character stuff on Instagram also? Are you planning to? Maybe you should make it a little bit of your persona मतलब on it's your a thought. Instagram. ये सही है, इंटरेस्टिंग आइडिया है. मतलब it can. Because he would have a take on it, no? Blue Batti wala take. Yeah. Easy take.
Neeli Bhatti, right? Okay, I mean, I guess that's about it. The people saying An Academy का subscription भैया दिला दो. अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम पर्सनल पढ़ो ना यार मतलब तुम ऐसे अनअकैडमी क्यों कर रहे हो यार हाँ अनअकैडमी का सब कुछ किसने मेरे को एक बड़ा बड़ा सही मीम बनाया था किसी ने कि किसी को धैर्य मिली किसी को पीसीएस मिला किसी को आईएएस मिला इसको क्या मिला अनअकैडमी ये क्या बात है अनअकैडमी क्या है मतलब ऐसे कौन बोलता है Bro, यार like so many features were brought to life of An Academy. I was like, अभी मुझे सब पता है क्या होने वाला है An Academy. नहीं पर तू सोच ना जर्सी कोई ब्रांड इतनी प्यारी स्टोरी को अगर पुश कर रहा है बैक कर रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार मतलब कितने बिल्कुल लोग करते हैं and at the time when everyone's like budget नहीं है या funds नहीं या है या या तो या I mean to get a title sponsor which has funded the whole thing to be able to tell a story it's worth the shout outs and it's worth the एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली instigation यार इंस्टाग्राम पे हम एक एक पोस्ट डाल रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के ब्रांड्स के बारे में तो ये फॉर क्या नो होता है रीजन तो ये तो बहुत प्यारी कहानी कही गई है यार एसके मिला है उससे संदीप भैया मिले हैं उससे अभिलाष मिला है Sandeep गिरी Bhaiya मिला है was so cool या एवरीवन Sandeep Bhaiya आई was थिंक based ऑल on a real story right which of these नो characters were नो based because there was some trivia about a similar character as Sandeep Bhaiya कुड बी and हाँ could be but there was no real character as such there were no parallel real character but I'm sure कि some instances for instance जो नवीन का अभिलाष the character उसका जो opening scene है of the वो जो water bottle के अंदर वो कैप डालने हाँ वाला that सीन was है a real वो that has video happened yeah yeah that was तो a I'm real sure कि video वो वहां से रेफरेंस होगा but it's a good reference क्योंकि उसके बाद बड़े सारे लोगों ने वो करना शुरू कर दिया